Welcome students. Today we are going to start a new session, and in this session we will say how we can do list manipulation in Prolog. So in previous lecture we have studied that how we can declare predicates, how we can declare terms, how we can write rules. All that things we have covered in the last lecture. In today's lecture we will see how we can use head and tail, how we can use concatenation, string concatenation, list concatenation in this example. That also we are going to learn. So पहले स्टार्ट हम करेंगे बेसिक लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखेंगे, उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसके साथ हेड एंड टेल को कैसे यूज करेंगे, एंड हाउ टू सॉल्व द कॉन्केटिनेशन प्रॉब्लम. दैट आल्सो वी विल सी. हाउ टू सॉल्व using head and tail. If you write some program, how to write a query for that program, that also we are going to see in today's session. So first we will start with the list declaration, or how to declare a list, how to define a list. See this, 1, 2, 3 and 4, these are the elements I have taken in the list, is equal to, I will separate this list using head and tail. So H and T, H represent head and T represent tail. So I will run this program, control enter, and you will see the output. H is equal to 1 and T is equal to 2, 3, 4. So whenever you declare any list in Prolog and you try to divide it in a head and tail, this is what we have used bar. Whatever we will take of this side of the bar is nothing but the head, and whatever you will take this side of the bar, that is the right side of the bar, will be the tail. H and T are the variables I have taken. You can take different variables also, no issue. H and T I have taken. So whenever you will define the list and you will separate head from the tail using the bar, H is nothing but the head is equal to 1. So the first element in the list will be treated as a head, and the remaining elements of the list will be treated as a tail. So that's why you will observe that T is equal to 2, 3, 4 and H is equal to 1. Now this kind of things you will use in many applications later. First we will see how we can refine this, how we can use other symbols also. So first I will use underscore. Now see here carefully, I am using underscore here, underscore, and here I will give comma. Okay, so what I am doing, I am using underscore, then I am using head once again, and see this head will, now I am going to, suppose I want to show only 2 value. In that case, this kind of things you have to do. And then see what I am doing, instead of tail I am using again underscore. Okay, so I will use this underscore here also. So now see what will happen, what kind of results we are going to get. So control enter I am doing, and H is now is equal to 2. Okay, so using underscore I have fetched second element of this list and displayed here. Okay, and why this has happened, because I have used underscore. जहाँ पे जो अंडरस्कोर यूज किया ना हमने, उससे क्या हो जाता है कि जो एलिमेंट है हेड एलिमेंट वो वैनिश हो गया यहाँ से, और हेड जो है वो सेकेंड पोजीशन पे जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वो असाइन हो गया एच को, और यहाँ बार के बाद भी आपने टेल नहीं लिया आपके रिजल्ट में, यहाँ पे भी आपने अंडरस्कोर यूज किया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जो भी आपका टेल था वो वैनिश हो गया, एंड फाइनली यू गॉट 2. सपोज यू वांट 3, व्हाट यू विल डू, वेरी सिंपल, वन मोर you will write one more underscore here, and you will see the result, you will get value 3. इसको हम अंडरस्कोर वेरिएबल भी बोलते हैं, या फिर डोंट केयर वेरिएबल भी एक टर्म है इसके लिए, अंडरस्कोर के लिए, और एक टर्म है इसके लिए अंडरस्कोर वेरिएबल के लिए, और वो है एनोनिमस वेरिएबल. सो एनोनिमस वेरिएबल या फिर अंडरस्कोर वेरिएबल या फिर डोंट केयर वेरिएबल, बिकॉज सी you are not caring about 1, 2, so that's why यहाँ पे जो प्लेस है ना वहाँ पे हमने अंडरस्कोर यूज किया है. अब सपोज you want to see 4, what you will do, you will add one more underscore here. Okay, so what you will do, you will add one more underscore, then comma, and then you will see the result, you will get 4. Okay, so now suppose I want to do some change in this. Suppose I want to do one change here, instead of underscore, if I use T, what will happen, see,
it is going to show empty because we have used 3 underscore. That means we vanished this 3 values already, and we stored the fourth element, this one, into H. That's why there is no nothing remaining. So that's why the empty list is assigned to T and it is showing T is equal to empty. So हमें ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम 2 एलिमेंट को ये हटा देते हैं, 2 वेरिएबल्स को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को हम नहीं रखेंगे, उसको एनोनिमस कर देंगे, और H में आएगी 2 की वैल्यू, और फिर 3 और 4 जो है वो T में स्टोर हो जाएगा और हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगे. अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा H इज इक्वल टू 2 because first variable you have used anonymous variable, that's why, and then what, T is equal to 3 and 4. So we'll see the result. वही result आ रहा है नहीं, see this, H is equal to 2 and T is equal to 3 and 4 because you have used anonymous variable. यहाँ पे आपने किया है उसको use underscore variable को, और यहाँ पे after bar आपने T रखा है, इसीलिए इसने हमें डिस्प्ले किया 3 and 4. okay, so this is how we can use this underscore variable, or we can say don't care variable. okay, anonymous variable, उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमने एक प्रेडिकेट लिया है, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ. नो चेंज नहीं हुआ है इसमें कुछ. तो fmt प्रिंट, ये हमने एक प्रेडिकेट लिया है और उस पर मैंने कुछ लिखा है, मैं दिखाऊंगा आपको. पहले मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ आपको. अगर यूजर सपोज ये प्रेडिकेट यूज करता है और इसमें कोई वैल्यू देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, एक मैं लिस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ 1 2 3 एंड 4. ओके, सो ये लिस्ट है और यहाँ पे खत्म कर देता हूँ मैं और डॉट लिख देता हूँ. तो ये प्रेडिकेट मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है यहाँ पे, उसको एक रूल लिखा है, जो भी रूल में होगा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए. मैंने रूल में ये लिखा है कि हेड इज 1 आना चाहिए एंड टेल इज 2 3 4 आना चाहिए, तो वो डिस्प्ले होना चाहिए. सो हम देखेंगे इसका रिजल्ट आ रहा है क्या. से दिस हेड इज 1, न्यू लाइन डालिए उसके बाद, एंड टेल इज 2 3 4. सो ये लिखा कैसे है इसको हम समझेंगे थोड़ा सा. अभी तक जो भी ऑपरेशन हमने किए थे, जो भी हमने फंक्शंस देखे हैं, वो सब हमने यहाँ पे देखे हैं. करेक्ट, यहाँ पे क्वेरी लिखी और उसके रिजल्ट देखे. लेकिन फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, और वो क्या है, से दिस वेरी सिंपल, fmt प्रिंट प्रेडिकेट है, जो भी वैल्यू आप यहाँ से सेंड करोगे, जैसे कि 1 2 3 4, वो डिवाइड हो जाएगी हेड एंड टेल में. सो 1 विल बी हेड एंड 2 3 4 विल बी टी. नाउ रूल सेज दैट राइट हेड इज मीन्स हेड इज राइट एच मीन्स व्हाट 1, वो यहाँ पे दिखा, हेड इज 1. उसके बाद एनएल रिप्रेजेंट व्हाट, न्यू कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर. ओके, सो इसीलिए जो बाद में रिजल्ट लिखा है हमने वो नीचे आ गया. सो टेल इज राइट टी, सो कैपिटल T विल बी नाउ व्हाट, the remaining part 2 3 4, so that's why it is displayed tail is 2 3 4. so this is how we have written the program. अब ये जहाँ पे जितने भी प्रेडिकेट हमने यहाँ पे यूज किए थे, उसके रिजल्ट यहाँ पे देखे थे, उसमें हमने उनको ही हमने सिर्फ एक प्रोग्राम में लिख के रखा है और उसको प्रोग्राम में हमने यूज किया है. तो इसके और भी यूज हो सकते हैं, वो भी देखेंगे हम. पहले हम एक समझेंगे कि कॉन्कैटिनेशन प्रोग्राम कैसे हम कर सकते हैं, कॉन्कैट कैसे कर सकते हैं दो लिस्ट को, और उसके लिए क्या क्या प्रेडिकेट लगेंगे. सो दैट वी विल सी फर्स्ट. सी फर्स्ट वी विल सी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. क्या है एक्सपेक्टेड रिजल्ट? हमने एक प्रेडिकेट लिखा है कॉन्कैट अंडरस्कोर, यहाँ पे सॉरी अंडरस्कोर, कॉन्कैट अंडरस्कोर से दिस लिस्ट्स. ओके, और इनपुट हम दे रहे हैं, यूजर जो इनपुट दे रहा है वो 2 लिस्ट देगा और उसको रिजल्ट चाहिए, वो कॉन्कैट करके चाहिए. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लिस्ट में दे देता हूँ 1 2 3. ओके, जो एग्जांपल मैंने लिया है वही दे दूंगा यहाँ पे, एंड ए बी. सो दिस इज लिस्ट नंबर 1, दिस इज लिस्ट नंबर 2, एंड आई वांट रिजल्ट. सो उसका भी रूल लिखा है वहाँ पे. सो यहाँ पे रिजल्ट को वो असाइन हो जाएगा. ओके, जब मैं ये रन करूंगा, ये क्वेरी मैंने जो लिखी है, तब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए. रिजल्ट में इज इक्वल टू ए बी, सॉरी 1 2 3 ए बी ऐसे लिख के आना चाहिए. इसका मतलब क्या है, ये 2 लिस्ट कॉन्कैट होनी चाहिए. ओके, ये फर्स्ट पार्ट होगा उस लिस्ट का, ये सेकेंड पार्ट होगा. सो ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, और ये लिस्ट 3 है जो रिजल्ट डिस्प्ले करेगी. सो आई विल रन दिस, से दिस आई एम गेटिंग रिजल्ट और नॉट, दैट वी विल सी.
सी आई गॉट द रिजल्ट 1 2 3 एंड ए बी। सो ये रिजल्ट मिला हमें, इसका मतलब है ये जो प्रिडिकेट हमने लिखा था उसका रिजल्ट हमें मिला है और उसमें दो लिस्ट यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो चुके हैं। अब कैसे हुआ ये हम देखेंगे। इसको हम ट्रेस भी कर सकते हैं, वो ट्रेस करके रखेंगे, बाद में हमें उसको यूज करना है जब हम सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने किया क्या है। ओके, सो सी फर्स्ट आई हैव रिटर्न कॉन्कैट लिस्ट, और इस कॉन्कैट लिस्ट में एक एम्प्टी लिस्ट ली है जो पहली लिस्ट होगी। सपोज यूजर ने एम्प्टी लिस्ट की तो ऑटोमेटिकली सेकेंड लिस्ट ही रिजल्ट बन जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे अगर एम्प्टी लिस्ट होगा, हम एम्प्टी लिस्ट भी करके देखेंगे। से दिस ओके, मुझे डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए ए बी। ओके, सो ए बी, अब इसका मतलब क्या हो गया कि बिकॉज फर्स्ट लिस्ट इज एम्प्टी, फर्स्ट लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो जाएगी सेकंड के साथ, इसका मतलब सेकंड ही लिस्ट आपका रिजल्ट बनना चाहिए। इसके लिए कोई रूल चाहिए आपको, और ये रूल हमने यहाँ पे लिख दिया है। सी दिस कॉन्कैट लिस्ट, अगर पहली लिस्ट एम्प्टी होगी तो जो दूसरी लिस्ट होगी वही आपकी तीसरी लिस्ट होगी। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, लिस्ट 2 ही आपकी लिस्ट 3 होगी। तो यहाँ पे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, लिस्ट इज इक्वल टू रिजल्टेंट लिस्ट विल बी इज इक्वल टू सेकेंड लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में कुछ है ही नहीं ना, इसीलिए। ओके, तो ये केस हो सकती है कि आपकी लिस्ट एम्प्टी हो। हाँ, अगर एम्प्टी नहीं होगी तो फिर क्या होना चाहिए। सपोज 1 2 3 हो गई यहाँ पे लिस्ट आपकी, और ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आना चाहिए समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा लॉजिक पहले समझ लेते हैं। एच टी, इसका मतलब हेड एंड टेल में आपने डिवाइड कर दिया इस लिस्ट को। उसके बाद L2 वैसे ही रहेगा, ए बी जो भी है आपकी लिस्ट, और आपकी जो थर्ड लिस्ट है ना, इसमें हेड आ जाएगा। ठीक है, हेड तो आपको मिल गया यहाँ से, लेकिन L3 अभी तक आपको पता नहीं है क्या है। L3 इज अ रिजल्ट। ओके, सो L3 तो पता नहीं है आपको क्या है। वो L3 आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। ये एक रिकर्सिव कॉल है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेल जो मिल रही है ना हमें, उसको उसके साथ हम L2 कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, और वही हमारा रिजल्टेंट L3 होगा। ओके, जो भी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन यहाँ होगा, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है तो ये रिकर्जन यहाँ पे जाएगा और चेक करेगा। सो दैट्स वाई T और L2 का कॉन्कैटिनेशन होगा और वो L3 में सेव हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं हम। इसको मैं ट्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी रिजल्ट आएंगे हमारे। ये देखो, आपको यहाँ से ट्रेस लिखना है, कॉमा, और फिर आपका जो प्रिडिकेट होगा वो ट्रेस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको देख सकते हैं कैसे वो आगे जा रहा है। देखो कैसे आगे जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जिट होगा उसका, क्योंकि वो एम्प्टी लिस्ट मिल गई, और एग्जिट में वैल्यू रिटर्न हो जाती है सब। ओके, सो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो एक्चुअली वर्क कैसे हो रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कुछ, और ये भी हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कॉल हो रहा है एग्जिट में, कैसे वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे, ये भी हम देखेंगे। तो इसको तो हम ट्रेस से देख सकते हैं, मैंने बोला आपको। और ये जो स्टेप्स लिखी है मैंने, ये एक बार समझ लेते हैं पहले। सो नाउ सी, जब भी हम कॉल करेंगे, यहाँ से क्वेरी डालेंगे, तो ये लिस्ट 1 पास करेंगे, लिस्ट 2 पास करेंगे, और हमें चाहिए क्या, रिजल्ट चाहिए। सो यहाँ पे रिजल्ट हमें आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। तो लिस्ट 1 ए बी सॉरी 1 2 3 है, तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं है, तो हम सेकंड कॉल पे जाएंगे, और सेकंड कॉल में हम क्या करेंगे, हेड को टेल को अलग करेंगे। सो 1 2 3 में यहाँ पे 1 होगा हेड हमारा, और 2 एंड 3 टेल होगा। L2 तो वही होगा लिस्ट 2 हमारा ए बी, और जो थर्ड लिस्ट हम चाहते हैं ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, हेड को ऐड करेंगे, यहाँ से 1 हेड है उसको ऐड करेंगे, और L3 अभी हमारे पास है नहीं कोई वैल्यू, क्योंकि L3 तो इस रिकर्सिव कॉल से मिलनी है हमें, क्योंकि T होगा यहाँ पे टेल, उसको हम कॉल में लेंगे 2 3 को, और L2 जो होगी ए बी उसको भी कॉल में लेंगे। L3 तो हमारे पास अभी है नहीं, तो ये इसको हम काउंट भी नहीं करेंगे अभी। तो जो कॉल होगा हमारा कॉन्कैट लिस्ट का, वो T एंड L2 से होगा, ये रिजल्ट होगा फाइनल हमारा। तो ये यहाँ पे जाएंगे, हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, और उसको हम देखेंगे ये हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से हम वापस आएंगे, फिर से रिकर्सिव कॉल होगा। ओके, सो हम देखते हैं पहले क्या होता है। यहाँ पे हेड की वैल्यू मिल गई, L3 की कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, रिकर्सिव कॉल जाएगा पहला यहाँ पे, उसमें हमारा T होगा 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे 2 एंड 3 है, सो T तो हमारे पास है।
जो लिस्ट 2 है वो तो ए बी ही रहेगी, यहाँ से जो हमने पास की है, यहाँ से जो हमने सेंड की है वही L2 रहेगा हमारा। रिजल्ट में आएंगे हम, हेड हमें 2 मिलेगा। अब यहाँ पे अभी भी हमारे पास कोई L3 की वैल्यू है नहीं, तो और एक रिकर्सिव कॉल होगा, उसमें टेल जो है 3 और L2 AB उससे कॉल करेंगे हम। सो ये जो सेकंड कॉल देख रहे हैं आप, वो 3 वैल्यू यहाँ पे ली है हमने और AB हमने वैल्यू ली है जो L2 की वैल्यू है। ओके, सो यहाँ से हम कॉल करेंगे और फिर से एक बार हमें हेड मिल जाएगा। यहाँ पे 3 हेड है यहाँ पे, लेकिन L3 की वैल्यू कोई हमारे पास है नहीं अभी तक। सो फिर से एक बार रिकर्सिव कॉल होगा। अब जब रिकर्सिव कॉल होगा तो टेल क्या रहेगा, यहाँ पे कोई टेल है नहीं अभी, क्योंकि 3 वैल्यू है वो ही हेड हो जाएगा। सो देर इज नो टेल, सो एम्प्टी हम पास करेंगे और L2 जो है वो AB जाएगा हमारा। ओके, अब यहाँ पे मैच हो जाएगा वैल्यू, सी दिस एम्प्टी जो लिस्ट 1 है, मीन्स जो यहाँ से हमने सेंड की थी ना, उसी तरह से यहाँ से ये जो कॉल गया है उसमें एम्प्टी लिस्ट जाएगी। लिस्ट यहाँ पे जो 2 है वो AB जाएगी यहाँ पे, और उसी को हम लिस्ट 3 कंसीडर करेंगे। सो वही हमारी जो AB है ना, वही हमारी लिस्ट 3 बन जाएगी और हमें रिजल्ट मिल जाएगा और रिकर्सिव कॉल हमारे रुक जाएंगे। सो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि AB असाइन हो गया। ओके, सो AB असाइन हो गया। अब होगा क्या, देर विल बी नो रिकर्सिव कॉल, नो मोर रिकर्सिव कॉल, और जो भी वैल्यू होगी L3 की वैल्यू जो मिल रहे हैं, पहली तो AB है, वो रिटर्न करते जाएगा, वो ऊपर 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 रिटर्न करते जाएगा। ओके, एक टाइप का बैक ट्रैकिंग ही है, उसमें वैल्यू मिलती जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो A वैल्यू है यहाँ पे असाइन हो जाएगी, सो ये बन जाएगी 3AB। अब यहाँ पे वैल्यू होगी 3AB, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी, तो ये नई वैल्यू बन जाएगी 23AB, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी मिलेगी 23AB, वो यहाँ असाइन हो जाएगी और हमें फाइनली मिल जाएगी 123AB। सो ये हमारा रिजल्ट है जो फाइनली हमें मिल गया। ओके, सो दिस इज हाउ रिकर्सिव कॉल एक्चुअली वर्क। रिकर्सिव कॉल कैसे वर्क करता है, अगर आप ट्रेस भी करेंगे ना, तो वहां पे भी आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, ये थोड़ा समझना चाहिए। सिमिलर ही है, 1 2 3 है, AB है, यहाँ पे कुछ रिजल्ट में है नहीं। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, हर बार हमारा जो हेड है वो गायब हो रहा है ना, वो गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां आ रहा है, रिजल्ट में आ रहा है हेड। ओके, और इसीलिए यहाँ वो दिख नहीं रहा है कहीं पे, और फाइनली यहाँ पे एम्प्टी मिल रहा है, और एम्प्टी में ये एंड हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। देखो, क्योंकि ये एम्प्टी मिल गया तो मैच हो गया ना, तो AB हमारा AB बन जाएगा। देखो AB है, वही हमारा AB रिजल्ट बन गया। और फिर बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, ये वैल्यूज उल्टे ऐड होते जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे, पहले तो 3 हो जाएगी, उसके बाद 2 3 हो जाएगी, और उसके बाद 1 2 3 हो जाएगी, और फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट। दिस इज हाउ रिकर्जन वर्क्स। अब एक ही एग्जाम्पल में हमने बहुत सारी चीजें देख ली है यहाँ पे। एक तो हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन देख लिया, कैसे कोड से हम कर सकते हैं इसको। एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि कैसे बैक ट्रैकिंग भी हो रहा है, या फिर कैसे वैल्यूज मिलती जा रही है हमें। और उसी के साथ हमने ये भी देखा है कि कैसे हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं, और कैसे हम ट्रेस भी कर सकते हैं, कि जैसे हर एक स्टेप को हमें देखना होगा, तो ट्रेस कैसे करना है ये भी हमने इसमें कवर कर लिया। सो अभी के लिए इतना ही। हमने जो लिस्ट मैनिपुलेशन है उसमें हेड एंड टेल और उसके ऑपरेशंस और उसका यूज देखा है। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम जो कुछ इनबिल्ट प्रेडिकेट है उनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।